محترم حاضرین جمعہ، اللہ رب العالمین کی قدرت کاملہ اور اس کی ربوبیت کی اس دنیا میں اور کائنات میں انگنت اور بے شمار نشانیاں ہیں جو اس کی قدرت کاملہ پر، اس کے رب ہونے پر دلالت کرتی ہیں۔ انہی بے شمار نشانیوں میں سے جن نشانیوں کے ذریعہ اللہ کی قدرت کاملہ کا اظہار ہوتا ہے، انہی میں سے موسموں کی تبدیلی ہے۔ دن اور رات کا آنا جانا، موسموں کا بدلنا، کبھی موسم سرما ہے تو کبھی موسم گرما ہے تو کبھی موسم خزاں و بہار ہے، کبھی موسم خریف یعنی پتجھڑ ہے۔ یہ سارے جو مواسم ہیں جس کی تاثیر ہم انسانوں پر، اللہ کی دیگر مخلوقات پر الگ الگ ہوتی ہے۔ موسم گرما میں ہم سب کو حرارت، تپش، شدت محسوس ہوتی ہے، پیاس محسوس ہوتی ہے۔ انسان کو حرارت کی وجہ سے، شدت گرمی کی وجہ سے تکلیف اور پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ وہیں پر موسم سرما، ٹھنڈی کا جو موسم ہوتا ہے، جاڑے کا جو موسم ہوتا ہے، بالکل اس کے اپوزٹ ہے، اس کے بالکل برعکس ہے۔ انسان گرمی حاصل کرنے کے لیے آگ کے پاس بیٹھتا ہے، گرم کپڑے استعمال کرتا ہے، گرم لباس کا انتخاب کرتا ہے۔ دیکھیے کتنا فرق ہے دونوں میں۔ یہ اللہ کی بڑی قدرت ہے، یہ اللہ رب العالمین کی قدرت کی نشانی ہے کہ اللہ دیکھیے رات اور دن کی جو تبدیلی ہے، اسی تبدیلی کے دوران کیسے کیسے مواسم اللہ پیدا کرتا ہے، اور ان موسموں کی الگ الگ تاثیر ہوتی ہے۔ ایک کی ٹھنڈی ہے، ایک کی گرمی ہے، ایک میں دونوں ہیں۔ اب دیکھیے موسم بہار جو ہے، اس میں گرمی بھی رہتی، سردی بھی رہتی، زیادہ بارش ہو گئی، سردی ہو گئی۔ تو یہ اللہ کی بڑی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ یہ ساری نشانیاں اللہ کی الوہیت اور ربوبیت پر دلالت کرتی ہیں۔ حاضرین گرامی، ان مواسم کی تبدیلی میں یا ان مواسم کے اندر بھی، موسم گرما ہو، سرما ہو، موسم خزاں ہو، موسم خریف ہو، ان سارے مواسم میں ہم سب کے لیے عبرت اور نصیحت پکڑنے کے لیے بے شمار نشانیاں اللہ نے رکھی۔ اسی وجہ سے اہل علم نے کہا التفکر والتدبر فی خلق اللہ من اعظم القربات الى اللہ ومن اعظم العبادات۔ اللہ کی مخلوقات کے اندر غور کرنا، تدبر کرنا، سوچنا، اللہ نے یہ اتنی بڑی مخلوق کیسے پیدا کر، اللہ نے آسمان کیسے بنایا، اللہ نے زمینیں کیسی بنائی، یہ سمندر، یہ پہاڑ، یہ ہوائیں، بارشیں، یہ انسان، اللہ رب العالمین نے کیسے بنایا۔ ان سارے اللہ کی مخلوقات کے اندر تدبر کرنا، تفکر کرنا، یہ اللہ رب العالمین کی قربت کا سب سے اہم اور بڑا ذریعہ ہے۔ یہ سب سے عظیم عبادتوں میں سے ہے۔ اس کا تعلق دل کی عبادت سے ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے تعلق آتا ہے کہ امام شافعی رحمہ اللہ ایک مرتبہ رات بھر صرف اللہ کی مخلوقات کے بارے میں تدبر کرتے رہے، لیکن جن کے ہاں ٹھہرے ہوئے تھے انہوں نے دیکھا کہ پانی جو وضو کے لیے ان کو دیا گیا تھا، وہ پانی ویسے ہی محفوظ ہے۔ انہوں نے صبح میں پوچھا آپ نے تہجد کی نماز نہیں پڑھی؟ کہا میں اس سے افضل عبادت میں مشغول تھا، پوری رات میں اللہ رب العالمین کی مخلوقات کے بارے میں تدبر کرتا رہا، غور و فکر کرتا رہا، اللہ نے فلاں چیز کیسے بنائی، اللہ نے فلاں چیز کو کیسے پیدا کیا۔ تو کہا کہ اس سے افضل اور بہتر عبادت میں رات بھر مشغول رہا۔ اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر مومنین کی صفات کا ذکر کرتے ہوئے کہا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار۔ اللہ نے مومنین کی صفات بیان کرتے ہوئے کہا مومنین وہ لوگ ہیں جو ہر وقت اور ہر لمحہ اور ہر پل اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، لیٹے بیٹھے سوئے چلتے پھرتے ہمیشہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔
वयतफक्करून फी खल्क़िस समावाति वल अर्द, और आसमान और जमीन के अंदर ये जो बड़ी सारी मखलूकात अल्लाह ने बनाई, उन मखलूकात के अंदर तफक्कुर करते हैं, गौर करते हैं, तदब्बुर करते हैं, उससे उनके ईमान में इजाफा होता है। इससे इंसान के दिल में अल्लाह की आज़मत और अल्लाह की जलालत में इजाफा होता है। एक इंसान जब सोचता है कि इतनी बड़ी बड़ी चीजें अल्लाह ने आखिर कैसे वजूद में लाई, कैसे अल्लाह ने पैदा किया, और वो कह बैठते हैं रब्बना मा खलक़्ता हाज़ा बातिला, अल्लाह तो इनमें से किसी भी चीज को ज़ाया और बातिल और बर्बाद नहीं पैदा किया, सबका एक मकसद है, सब बामकसद चीजें इस दुनिया के अंदर वजूद में आई है, सबका कुछ ना कुछ किसी एतबार से फायदा है, कोई भी चीज ला यानी ज़ाया और बर्बाद अल्लाह तूने नहीं पैदा, अगरचे हमारे नजरिए से वो चीज हमारे लिए नुकसानदेह है, वो चीज तकलीफ दे है, वो चीज हमारी निगाह में, हमारे अक्ल, हमारे फिक्र के एतबार से अगरचे वो ज़ाया बर्बाद है, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन बेहतर जानता है कि अल्लाह ने जितनी भी चीजों को पैदा किया है उनका कोई ना कोई मकसद है और वो उसका कोई ना कोई फायदा है। अल्लाह दूसरी आयत के अंदर फरमाता है युक़ल्लिबुल्लाहुल लैला वन्नहार इन्न फी ज़ालिका लइब्रतन लिउलिल अब्सार, अक्लमंदों के लिए निशानियां हैं, अक्लमंदों के लिए, अहले बसारत के लिए दिन और रात की तब्दीली में बड़ी निशानियां हैं। अल्लाह इसी वजह से दिनों को रातों को उलटता पलटता रहता है, मवासिम को बदलता रहता है, ताकि जो अक्लमंद है, अहले इल्म है, अहले बसीरत है, अहले ईमान है, वो इससे इबरत पकड़ें, नसीहत हासिल करें। इन्न फी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन युमिनून, दूसरी जगह अल्लाह ने कहा इसमें ईमान वालों के लिए बहुत सारी निशानियां, उनके ईमान में इजाफा होता है, अल्लाह की जलालत, अल्लाह की आज़मत, अल्लाह की कुदरत उनके दिलों में बैठती है और बसती है। हाज़रीन गिरामी, लिहाजा हमें भी तदब्बुर और तफक्कुर करना चाहिए अल्लाह की मखलूक़ात के बारे में। और ये जो मौसम है ये भी मखलूक है, ये भी मखलूक है। मौसम गर्मा के ताल्लुक से शरीयत ने, इस्लाम ने हमको क्या तालीमात दी, सबसे पहले जान लें, मौसम गर्मा के अहकाम और मसाइल जानने से पहले आप ये जान लें कि ये मौसम गर्मा, इससे हमें क्या नसीहत हासिल करना है, कौन सी इबरत पकड़नी है, क्या इसमें हमारे लिए मौइज़त है, क्या निशानियां है। सुने, सबसे पहली चीज तो ये, हमें ये गौर करना है, हमें ये फिक्र करनी है, हमें ये सोचना है कि आखिर ये गर्मी पैदा क्यों होती है, ये गर्मी आती कहां से है, ये तपिश, ये हरारत, ये शिद्दत जो एक इंसान के लिए इतनी तकलीफ का बाइस बनती है, आखिर ये गर्मी पैदा कहां से होती है, इस गर्मी का वजूद कहां से है, ये हरारत, ये तपिश, ये लू जो इंसानों के जिस्म को, चेहरे को झुलसा देती है, इसका वजूद कहां से है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि इश्तकतिन नारु इला रब्बिहा, जहन्नम ने अपने रब से शिकायत की, कहा या रब्बी अकला बादी बादा, ऐ मेरे रब, मेरा बाद हिस्सा बाद हिस्से को खाए जा रहा है। जहन्नम कितनी हौलनाक जगह है, कितनी भयानक जगह है, उसका अज़ाब कितना दर्दनाक है कि जहन्नम की जो खुराक है इंसान, वो तो है ही, इंसान ही खुराक बनेंगे, जिन्नात ही उसकी खुराक बनेंगे, लेकिन जहन्नम इतनी भयानक और खतरनाक जगह है कि जहन्नम का एक हिस्सा अपने ही हिस्से को खाए जा रहा है। सोचिए कितनी भयानक चीज है। शिकायत की जहन्नम ने अल्लाह से, फ़अज़िन लहा बिनफ़्सिही, अल्लाह ने जहन्नम को 2 सांस लेने की इजाजत दी, एक सांस ठंडी में, एक सांस गर्मी में। जब ठंडी हमारी इस दुनिया में रुई जमीन पर पड़ती है तो उसकी वजह क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जहन्नम का सांस लेना है। जब जहन्नम सांस अपने अंदर खींचती है, एक सांस बाहर छोड़ती है, वो फिर एक सांस अंदर लेती है, पूरे साल में यही बस, एक सांस बाहर छोड़ती है जहन्नम और एक सांस अंदर लेती है। जब जहन्नम सांस बाहर छोड़ती है तो जहां जहां जितना असर उसका पहुंचता है उसी हिसाब से गर्मी होती है। ये जहन्नम की सांस छोड़ने का असर है, जहन्नम के सांस का बाहर निकालने का ये असर है कि हम इंसान उस सांस को, जहन्नम की सांस जो बाहर छोड़ रही है, उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं।
हमारे पास बेशुमार वसाइल हैं उससे बचने के लिए, बेशुमार असबाब वसाइल हैं, नेमतें अल्लाह ने हमको फराहम की हैं गर्मी से बचने के लिए, लेकिन फिर भी ये तकलीफ हमारे लिए बाइसे तकलीफ है। हम इससे परेशान होते हैं, रातों की नींदें हराम होती हैं। सोचिए जहन्नम की सांस बाहर छोड़ने का ये असर है, तो जहन्नम में जो जाएगा उसकी हालत इज़ार क्या होगी। अल्लाह हम सबको जहन्नम से हिफाजत फरमाए। सोचिए, आप कभी गौर कीजिए, तदब्बर कीजिए कि जहन्नम बाहर सांस छोड़ रही है, उस सांस का असर पूरी दुनिया में जो हो रहा है, वो एक इंसान, एक हैवान, एक चरिंद परिंद, ये पेड़ पौधे, ये दरियाएं, ये समुद्र उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रही हैं। दरिया के दरिया सूख जा रहे हैं, तालाब के तालाब सूख जा रहे हैं, ये जमीनें सख्त हो जा रही है, जमीनें फट जा रही है। ये इंसान इतने सारे असबाब वसाइल को इख्तियार करने के बावजूद भी जहन्नम इस गर्मी की हरारत और तपिश से परेशान। जहन्नम, इस गर्मी का वजूद कहां से है? जहन्नम के बाहर सांस छोड़ने की वजह से। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, हुआ अशद्दु मा तजिदून मिनल हर, ये जहन्नम की गर्मी है। जहन्नम जो बाहर सांस छोड़ रही है उसकी वजह से गर्मी हो रही है। गोया कि मौसमे गर्मा हमको जहन्नम की याद दिलाता है। मौसमे गर्मा ये जहन्नम की याद दिलाता है इंसान को, एक मुसलमान को, एक मोमिन को, अल्लाह पर ईमान रखने वालों को। इससे इबरत और नसीहत ये हासिल करना है कि इन औकात में जब इंसान को शिद्दत हरारत महसूस हो, जब इंसान को सख्त गर्मी लाहिक हो, ऐसे वक्त में इंसान को जहन्नम याद करना चाहिए कि जहन्नम की सांस हम नहीं बर्दाश्त कर पा रहे हैं, तो जहन्नम के आदाब को कैसे हम बर्दाश्त करेंगे। ऐसे हालात में इंसान को चाहिए जहन्नम में जाने वाले जो असबाब हैं, जहन्नम में जाने वाले जो अवामिल हैं, अपने आप को उससे दूर रखें। जहन्नम में ले जाने वाले असबाब से अपने आप को बचाएं। ये नसीहत हमको हासिल करनी है। ये मौसम गर्मा हमको इस बात की याद दिलाती है। मौसम गर्मा में हमारे लिए इबरत और नसीहत इस बात की है कि आप जरा सोचें, आप जरा तसव्वुर करें, ये सूरज हमारे सरों से, हमारे जिस्म से कितनी दूर है। 150 मिलियन अरब से भी ज्यादा दूर है ये सूरज, इसकी कोई इंतहा ही नहीं, कोई गिनती ही नहीं है। इतनी दूर है ये सूरज, लेकिन उस सूरज की धूप और उसकी हरारत को हम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। इस सूरज की हरारत और उसकी धूप को हम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। ये सूरज, ये गर्मी हमको इस बात को याद दिलाते हैं कि आप जरा सोचें, आप जरा गौर करें, मैदान महशर होगा, हश्र का दिन होगा, 50,000 साल के बराबर वो दिन होगा जिसमें सारी इंसानियत को अपना हिसाब किताब देना। आप जरा सोचें, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, तुदना शम्सु मिन रुऊसिल खलाइक, अल्लाह के नबी ने कहा सूरज मखलूक से, इंसानों से इतना करीब होगा, इतना करीब होगा कि 1 मील की मसाफत होगी। 1 मील की मसाफत के दूर ये सूरज हमसे, हमारे सरों से होगा। रावी हदीस कहते हैं, ला अजरी अमसाफतल अर्द, मुझे ये नहीं मालूम है कि 1 मील की मसाफत जो अल्लाह के नबी ने बयान की है, जो हदीस में 1 मील की मसाफत का जिक्र है, वो जमीन की मसाफत 1 मील है या वो मील मुराद है जिससे इंसान अपनी आंखों में सुरमा लगाता है। वो काड़ी आपने देखी है जिससे आदमी सुरमा लगाता है अपनी आंखों में। कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जिक्र फरमाया है, मुझे इस बात का इल्म नहीं कि इससे 1 मील जमीन की मसाफत मुराद है या वो मील है जिससे आदमी अपनी आंखों में सुरमा लगाता है। जरा सोचिए, कई मिलियन दूर है ये सूरज, लेकिन 1 मिनट, अगर 5 मिनट किसी को उसी धूप में खड़ा कर दिया जाए, हो सकता है बेहोश हो, पसीने से वो डूब जाएगा, पसीने से भीग जाएगा, पसीने से नहा लेगा और मुख्तलिफ बीमारियों का उस पर असर हो सकता है, मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो सकता है। जरा सोचें, 50,000 साल के बराबर एक दिन होगा, सूरज हमारे सरों पर होगा, हमारे सर खोल रहे होंगे, एक इंसान अपने अमाल और बदअमालियों के हिसाब से अपने पसीने में गर्क होगा। मेरे नबी फरमाते हैं कि लोग अपने अमाल के हिसाब से, कोई पसीने में अपने टखने तक डूबा होगा,
कोई घुटनों तक होगा, कोई पिडलियों तक होगा, कोई कमर तक पसीने में डूबा होगा, कोई कंधे तक, यहां तक कि बाज लोग ऐसे होंगे जिनके गुनाह इतने ज्यादा होंगे कि उनको पसीनों की लगाम लगाई गई होगी, यानी वो पसीनों में डूब गए होंगे। ये तो ऊपर का पसीना है। आप सल्लम कहते हैं, सही बुखारी की हदीस है, यहां तक कि उनका पसीना, एक आदमी का पसीना जमीन के 70 गज के अंदर तक पहुंच जाएगा। 70 गज तक उसका पसीना पहुंचेगा। ये जमीन के अंदर इतना पसीना होगा, जमीन इतना जज्ब करेगी हमारा पसीना। और कितने लोग होंगे पसीनों में डूबे हुए होंगे। सोचिए, कभी हमने ये गौर किया, कभी हमने ये सोचा कि भाई ये सूरज जो है कितनी दूर है, उसकी धूप, उसकी तमाशत, उसकी हरारत हम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। ये सूरज की गर्मी, ये धूप, ये हरारत हमको इस बात को याद दिलाती है कि उस दिन को याद करें जब सूरज हमारे सरों के ऊपर होगा। लिहाजा ऐसे हालात में इंसान को उन असबाब व वसाइल को इख्तियार करना चाहिए जिन असबाब और वसाइल की बुनियाद पर, जिन अमाल की बुनियाद पर एक इंसान उस वक्त मैदान महशर में इस धूप की तमाशत से, उसकी हरारत से, इस अज़ाब से बच सके। हदीस के अंदर बेशुमार अवामिल और अमाल व असबाब बयान किए गए हैं जिसकी वजह से एक इंसान क़यामत के दिन मैदान महशर में उस धूप से बच सकेगा और अल्लाह के अर्श का साया उसको हासिल होगा। कई लोगों का जिक्र हदीसों में, उन अमाल को इख्तियार करने की जरूरत है। हाज़िरीन गिरामी, ये सारी चीजें जो हमने कहा, ऐसे हालात में जहन्नम को याद करें, ऐसे हालात में मैदान महशर को याद करें, ऐसे हालात में जहन्नम के अज़ाबों को याद करें और उन असबाब व वसाइल को छोड़ दें जो अज़ाब जहन्नम का सबब बनने वाले हैं। उन असबाब व वसाइल को इख्तियार करें जो मैदान महशर में अल्लाह के साया आपको दिलाने वाले हैं। लिहाजा ये मौसम जो है, सिर्फ ये नहीं कि मौसम आया, मौसम चला गया, मौसम से लुत्फ अंदोज हुए या परेशानियां हमने झेली, सिर्फ इसलिए मौसम नहीं बदलता। मौसमों की तब्दीली के अंदर हम सब के लिए, खास तौर पर हम ईमान वालों के लिए, अल्लाह को मानने वालों के लिए बड़ी सारी निशानियां हैं। इसमें इबरतें हैं, नसीहतें हैं। बस वो दिल चाहिए जो नसीहत पकड़ने वाला हो, वो बसारत चाहिए, वो अक्ल व फहम चाहिए जो अल्लाह के इस कुदरत कामिला को देख सके, उसको समझ सके और उसके ईमान में इजाफा हो सके। लिहाजा इस मौसम के कुछ मसाइल हैं, कुछ मुतालबात हैं। इस मौसम के अंदर सबसे पहला मसला अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया। क्या बयान किया? मौसम गर्मा में खास तौर पर ज़ोहर की नमाज को ताखीर से पढ़ना चाहिए। मौसम गर्मा में ज़ोहर की नमाज को ठंडा करके पढ़ें। हदीस के अल्फाज हैं, अबू दर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं, हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। मुअज्जिन ने अज़ान देने का इरादा किया। जो आम औकात में, आम दिनों में जो अज़ान का वक्त होता था, मुअज्जिन अज़ान देने के लिए खड़ा हुआ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अब रेत और ठंडा कर लो, अभी और ठंडा होने दो मौसम, सूरज की धूप कम होने दो, हरारत कम होने दो। तुम मारादा ही वदन, फिर दोबारा मुअज्जिन अज़ान देने का इरादा करता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर कहा, अब रेत और ठंडा करो। इसी वजह से 3 मरतबा या 2 या 3 मरतबा, सही बुखारी के अल्फाज हैं, हत्ता रअयना फैअत तलूल, यहां तक कि हमने टीलों के पहाड़ों के साये को जब देखा, जब साया आ गया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, इन्न शिद्दतल हर्रि मिन फैहि जहन्नम, ये जो शिद्दत हरारत है, ये सख्त गर्मी है, ये जो लू है, तपिश है, हरारत है, मिन फैहि जहन्नम, जहन्नम के सांस लेने की, उसकी तमाज़त की वजह से, उसके भाप की वजह से। आपने कहा फैदस्तद्दल हर्र, जब सख्त गर्मी हो, गर्मी तेज हो जाए, हरारत बढ़ जाए, फअबरिदू अस्सलाह, तो नमाज को ठंडी करके पढ़ा करो, नमाज को ठंडी करके पढ़ा करो। ये सुन्नत महफूज है हमारे दरमियान। इस सुन्नत पर अमल नहीं हो रहा है। अहले हदीसों को चाहिए, अहले हदीस के मसाजिद वालों को चाहिए कि ये सुन्नत जो मुर्दा हो चुकी है, ये सुन्नत जो हमारे दरमियान से उठ चुकी है, इस सुन्नत को जिंदा करना,
इस सुन्नत को जिंदा करें, नबी की इस सुन्नत पर अमल करने की कोशिश करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, इज़ा इश्तद्दल हर फअब्रिदू बिस्सलाह, जब गर्मी ज्यादा बढ़ जाए तो नमाज ठंडी करके पढ़ो। बल्कि हदीस के अल्फाज हैं, अनस इब्न मालिक रावी हदीस हैं, कहते हैं काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा काना अल हर्रु अबरद बिस्सलाह व इज़ा काना अल बर्दु अज्जला, जब सख्त गर्मी होती नमाज ठंडी करके पढ़ते, और जब ज्यादा ठंडी पड़ जाती तो आप सल्लम ज़ोहर की नमाज में जल्दी करते, ज़ोहर की नमाज में जल्दी करते। जब ठंडी का मौसम हो तो अव्वले वक्त में ज़ोहर की नमाज को अदा करना ये नबी की सुन्नत है। जब सख्त गर्मी हो तो ऐसी सूरत में ज़ोहर की नमाज को ताखीर से पढ़ना ये नबी की सुन्नत है। इस सुन्नत पर अमल नहीं हो रहा है। ये 2-2.5 महीना 3 महीना अगर मुमकिन हो सके तो इस सुन्नत पर अमल किया जाए। इसी तरीके से एक दूसरा मसला जो मौसम गर्मा से ताल्लुक रखता है, हर इंसान को चाहिए कि वो नजाफत का, सफाई सुथराई का, गुस्ल का और खुशबू का एहतमाम करे। खास तौर पर वो मुसलमान, खास तौर पर वो इंसान जो अल्लाह के घर में अल्लाह की इबादत के लिए यहां आता है, उस पर ये और ज्यादा मसला संगीन है कि वो अच्छे तरीके से सफाई सुथराई इख्तियार करके, नजाफत इख्तियार करके, गुस्ल करके, खुशबू इस्तेमाल करके मस्जिद में आए। क्योंकि इंसान पसीनों में शराबोर होता है, पसीने की वजह से उसके कपड़े तर होते हैं, पसीने उसके जिस्म से फूट रहे होते हैं, उसके पसीने से बदबू आ रही है। वो आकर एक साफ सुथरे मुसल्ली के बगल में खड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से उसको नमाज में तकलीफ होती है, उसकी नमाज खराब होती है, उसके खुशू में फर्क पड़ता है। लिहाजा खास तौर पर जो मस्जिद में आते हैं उनके लिए जरूरी है ऐसे लिबास इख्तियार करके आए, ऐसा लिबास पहनकर आए जिसमें बदबू ना आ रही हो। इसी वजह से हमने कहा गुस्ल करके, नजाफत हासिल करके, खुशबू का इस्तेमाल करके मस्जिद में आए। जुमा क्या गुस्ल, आप देखें हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि लोग मजदूरी किया करते थे। मदीना में क्या है, खेती बाड़ी का काम ज्यादा होता था, तिजारत पेशा लोग थे, खेती बाड़ी करने वाले थे। तो लोग जब जुमा के दिन मस्जिद नबवी में आते थे, फयुसीबुहुमुल गुबार व यखरुजु मिनहुमुल अरक, गर्दो गुबार से अटे हुए होते थे, पसीना बह रहा होता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत आयशा कहती हैं, जब वो जुमा के दिन मस्जिद में आते, राहू फी हैअतिहिम फतखरुजु मिनहुमुर रीह, पसीना लगा हुआ होता था, पसीने से कपड़ा तर हुआ होता था। तो कहते हैं कि फतखरुजु मिनहुमुर रीह, उनसे बदबू फूटती थी। ज़ाहिर-सी बात है पसीने में बदबू आती है, ये फितरी चीज है, ये फितरी चीज है। वो नबी का पसीना था, वो नबी का अर्क था जो मुश्क अंबर से भी ज्यादा महकता था। जैसा कि ऐसे अस्मा गालिबन है, आप सल्लम की खुशबू को एक डिबिये में इकट्ठा करती थी, जमा करती थी आपके पसीने को। तो वो नबी की शान है, वो नबी का मौजज़ा है। लेकिन आम इंसानों के पसीनों से बदबू आती है, फितरी चीज है, तो उनसे बदबू फूटती थी, लोगों को फयतअज़्ज़ा बिहन्नास, लोगों को तकलीफ महसूस होती थी। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आए, एक इंसान से बड़ी बदबू फूट रही थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, लौ अन्नकुम ततहहरतुम लियौमिकुम हाज़ा, एक रिवायत में लौ इग़तसलतुम लियौमिकुम हाज़ा, काश अगर तुम लोग तहारत हासिल करके, सफाई सुथराई अख्तियार करके, गुस्ल करके आते तो बड़ा अच्छा होगा। इसी वजह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मन जा मिनकुम इलल जुमअ फल्यग़तसिल, जुमा के दिन जो भी आए गुस्ल करके आए, जुमा के दिन जो भी आए गुस्ल करके आए। बल्कि आपने कहा हक़्क़ुन अला कुल्लि मुस्लिम गुस्लु यौमिल जुमअती वाजिबुन अला कुल्लि मुहतलिम, हर बालिग इंसान पर जुमा के दिन गुस्ल करना फर्ज है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस है। हमने कहा आपके बगल में साफ सुथरे लोग खड़े हैं, मुअत्तर होकर आए हैं, अच्छा लिबास पहनकर आए हैं, आपके पसीने की वजह से उनको तकलीफ हो रही है, आपकी वजह से उनकी नमाज खराब हो रही है, आपकी वजह से फरिश्तों को तकलीफ हो रही है। हम जब नमाज के लिए खड़े होते हैं, फरिश्ते आते हैं, फरिश्ते भी हमारे साथ रहते हैं। हदीस के अल्फाज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, जब इंसान नमाज के लिए खड़ा होता है, फरिश्ता उसके पीछे खड़ा होता है, और जब वो क़िराअत शुरू करता है
تو ایسی صورت میں فرشتہ اپنا منہ اس مصلی کے منہ پر رکھ دیتا ہے، جو بھی اس کے منہ سے نکلتا ہے وہ فرشتے کے پیٹ میں جاتا ہے۔ اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اپنے منہ کو طہروا افواہکم بالسواک، اپنے منہ کو مسواک کے ذریعہ صاف پاک کیا رکھو تاکہ فرشتوں کو تکلیف نہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان الملائکہ تتأذی مما یتأذی منہ الانسان، فرشتوں کو بھی ان چیزوں کی وجہ سے تکلیف ہوتی ہے جن چیزوں کی وجہ سے انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ اگر ہمیں بدبو آ رہی ہے، ہمیں اس کے پسینے سے تکلیف ہو رہی ہے، ہماری نماز خراب ہو رہی ہے، کراہت کے ساتھ ہم اس کے بغل میں کھڑے ہوئے نہ چاہتے ہوئے کیونکہ نماز پڑھ رہے ہیں، سب توڑ نہیں سکتے ہیں، فرشتوں کو بھی تکلیف آپ کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ تو موسم گرما کے احکام میں سے، مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ مسجد میں خاص طور پر اس کا اہتمام کریں، مسجد میں آئیں، اچھے لباس پہنیں، غسل کریں، خوشبو استعمال کریں، اور اسی طریقے سے اس کے مسائل میں سے، موسم گرما کے مسائل میں سے ایک اہم مسئلہ صدقات و خیرات کرنا ہے، خاص طور پر پانی کا صدقہ۔ پانی کا صدقہ افسوس ہے جس دین نے، جس اسلام نے ہم کو یہ تعلیمیں دی ہیں، ہم جس نبی پر ایمان رکھنے والے ہیں، جس نبی نے ہم کو یہ تعلیمیں دی ہیں، اس نبی کو ماننے والے اس کی اہمیت کو نہیں سمجھ رہے ہیں۔ آپ دیکھیں مختلف جگہوں پر ٹھنڈے پانی کا انتظام غیر مسلم لوگ کر رہے ہیں۔ یہ بات صحیح ہے کہ نہیں؟ آپ یہاں دیکھ لیں بس اسٹینڈ پر، آپ مدرسے کے سامنے دیکھ لیں، آپ اس موڑ پر دیکھ لیں، یہ ٹھنڈے پانی کا انتظام کون کر رہا ہے؟ جن کو یہ حدیث نہیں معلوم، جن کو اسلام کی امتیازات اور خصوصیات کے بارے میں کچھ بھی علم نہیں ہے۔ یہ اسلام کی امتیازات ہے، اسلام کی خصوصیات ہے، یہ اسلامی شعار ہے، ہمارے نبی نے ہم کو اس کی تعلیم دی ہے، لیکن ہم اپنے نبی کی تعلیم سے نا آشنا ہے۔ غیر لوگ یہ کام کر رہے ہیں، ہمارے لوگ اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ نہیں لے رہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ہم اسلام کی خوبیوں کو دوسروں تک پہنچاتے، نبی کی تعلیم کو دوسروں تک پہنچاتے، ہم سب سے پہلے اس پر عمل کرتے، لیکن ہمارے بجائے جو نبی کا انکار کرنے والے ہیں، جو نبی کی نبوت کو ماننے والے نہیں، جو اسلام کو ماننے والے نہیں، وہ اس سنت پر عمل کرتے ہیں۔ موسم گرما میں ٹھنڈے پانی کا، ٹھنڈے مشروبات کا مساجد کے اندر، مدارس کے اندر، دیگر جگہوں کے اندر جہاں بہت سارے انسان اکٹھا ہوتے ہیں، بس اسٹینڈ ہو یا فلاں جگہ پر جہاں پر لوگوں کو پانی کی سخت ضرورت پڑتی ہو، زیادہ ضرورت محسوس ہوتی ہے، ایسی جگہوں پر ٹھنڈے پانی کا استعمال کرنا یہ ہمارا فریضہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، سعد بن عبادہ کہتے ہیں اللہ کے رسول ان ام سعد ماتت، اللہ کے رسول ام سعد کا انتقال ہو چکا ہے، وہ مر گئی ہیں۔ فأي الصدقة افضل، میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں ان کی طرف سے، سب سے افضل صدقہ کیا ہو سکتا ہے جو میں ان کی طرف سے کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الماء، پانی، کیونکہ عرب میں پانی کی قلت ہے، پانی کی قلت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پانی، ایسے موسم میں لوگوں کو پانی کی قدم قدم پر ضرورت پڑتی ہے، چاہے وہ پینے کے لیے ہو، سر پر بہانے کے لیے ہو، یا دوسری چیزوں میں استعمال کرنے کے لیے ہو۔ موسم گرما میں پانی کے استعمال کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا سب سے افضل صدقہ ام سعد کی طرف سے جو تم کر سکتے ہو پانی ہے، پانی کا صدقہ کرو، پانی لوگوں کو پلاؤ، پانی پینے کا انتظام لوگوں کے لیے کرو۔ حدیث کے اندر آتا ہے آپ نے ایک کنواں خریدا اور مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا، کہا یہ مسلمانوں کے لیے ہے۔ اس طرح کے کام کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، ابو ہریرہ راوی حدیث فرماتے ہیں لیس صدقۃ اعظم اجرا مما، پانی کے صدقے سے زیادہ بڑا اجر کسی اور صدقے کا نہیں ہے۔ پانی اگر کوئی صدقہ کرتا ہے اخلاص کے ساتھ، ریا و نمود و شہرت کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے، لوگوں کو راحت محسوس کرانے کے لیے، لوگوں کی ضرورتوں کی تکمیل کے لیے، اللہ کے لیے اگر کوئی پانی کا صدقہ کرتا ہے، پانی کا انتظام کرتا ہے، اللہ کے نبی نے کہا اس سے بڑا اجر و ثواب اور کسی چیز کے صدقے کا نہیں۔ آپ کو بتاؤں میں، ابن بطال رحمہ اللہ بڑے امام گزرے ہیں، آپ کہتے ہیں سقی الماء من اعظم القربات الى اللہ، لوگوں کو پانی پلانا، لوگوں کے لیے پانی پینے کا انتظام کرنا، یہ اللہ کے قریب ہونے کا، اللہ کی قربت حاصل کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے،
सबसे बड़ा जरिया है। बल्कि बास ताबीईन का कहना है, ताबीईन क्या कहते हैं, मन कसरत दुनूबहु, जिसके गुनाह बहुत ज्यादा हो। में से कौन नहीं जिसके गुनाह कसरत से, कदम कदम पर हमसे गुनाह होते हैं, कदम कदम पर हमसे अल्लाह की नाफरमानियां होती हैं, कदम कदम पर हम नबी की सुन्नतों के तर्क करने वाले हैं, नबी की सुन्नतों को छोड़ने वाले हैं, अल्लाह की नाफरमानियां हमसे बेशुमार होती है। सुने, ये नसीहत इमाम इब्न बत्ताल ने पास ताबीईन के हवाले से नकल की है। मन कसरत दुनूबहु, जिसके गुनाह बहुत ज्यादा हो, फअलैहि बिसक़िल मा, उस पर जरूरी है कि वो लोगों को पानी पीने का इंतजाम करे, वो लोगों को पानी पिलाए, पानी का सदका करे। क्यों? आपने कहा वइदा गुफिरत दुनूबुल्लज़ी सकल कल्बा। आप सोचें सही बुखारी की वो हदीस, एक जानिया फाहिशा बदकार औरत ने एक मर्तबा कुएं से पानी पिया, कुएं से पानी पीने के बाद वो देखती है कि ये कुत्ता प्यासा है, कुत्ता जो नजिस जानवर है, अगर किसी बर्तन में मुंह डाल दे इतना नजिस है कि 7 मर्तबा से कम अगर कोई धुलता है तो उसकी पाकी हो ही नहीं सकती, वो बर्तन पाक ही नहीं हो सकता है, इतना नापाक है। आपने कहा कि वो औरत देखती है कि कुत्ता हाँप रहा है जुबान निकाले हुए, कुत्ता जुबान निकालता जब प्यासा होता, उस औरत ने उसको पानी पिलाया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि अल्लाह ने उस पानी पिलाने की वजह से उस बदकार और फाहिशा औरत को माफ कर दिया, उसको जन्नत में दाखिल कर दिया उस बदकार औरत को। क्यों? कुत्ते को उसने पानी पिलाया। इमाम इब्न बत्ताल रहमतुल्लाह कहते हैं, बात ताबीन ने कहा, फमा ज़न्नुकुम बिमन सका रजुलन मुमिनन मुवहिदा, तो उस आदमी के ताल्लुक से आपका क्या ख्याल है जिसने एक मोमिन और मुवहिद आदमी को पानी पिलाया। एक कुत्ते, एक नजिस जानवर को पानी पिलाने की वजह से एक बदकार और फाहिशा औरत की अल्लाह मग़फ़िरत कर सकता है, उसको जन्नत में दाखिल कर सकता है। अगर हम एक मोमिन को, एक मुवहिद को, अल्लाह उसके रसूल पर ईमान रखने वाले को अगर पानी पिला दें तो क्या हमारी मग़फ़िरत अल्लाह नहीं करेगा? क्या अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ नहीं करेगा? क्या अल्लाह हमको इस नेकी के बदले में जन्नत में दाखिल नहीं कर सकता है? जरूर कर सकता है, जरूर कर सकता है, जरूर हमारी मग़फ़िरत अल्लाह कर सकता है। बस इखलास की जरूरत है, लिल्लाहियत की जरूरत है। लिहाजा ऐसे हालात में पानी का इंतजाम करना, चाहे वो इंसानों के लिए हो, हैवानों के लिए हो, परिंदों के लिए हो, अपने घरों की छतों पर, अपने घरों की छतों पर चिड़ियों के लिए, परिंदों के लिए पानी का इंतजाम करें, पानी का इंतजाम करें। अल्लाह के नबी से सवाल किया गया, इन्ना लना फिल बहाइमी अजरा, अल्लाह के रसूल क्या इन जानवरों को भी पानी पिलाने में हमको अज्र मिलेगा? आपने कहा हाँ, जो भी मखलूक हो, जो भी जानदार मखलूक हो, सब में तुमको अज्र मिलेगा। कोई भी जानवर हो, कीड़े मकोड़े हो, परिंद हो, चरिंद हो, इंसान हो, मुसलमान हो, गैर मुस्लिम हो, कोई भी हो, इखलास और लिल्लाहियत के साथ अगर हम उसको पानी पिलाते हैं, अल्लाह हमको रहीक़ मख्तूम से पानी पिलाएगा। अल्लाह हमारी मग़फ़िरत कर सकता है, उस नेकी के बदले में हमको जन्नत में दाखिल कर सकता है। हज़रीन गिरामी, वक्त ज्यादा हो गया है, लिहाजा मैं अपनी बात को खत्म करते हुए एक और बात की जिक्र करना जरूरी समझता हूं। ऐसे हालात में रोजा अगर कोई रखता है, बहुत बड़ा अज्र और सवाब का काम है, इस शर्त के साथ कि उसको ज्यादा तकलीफ महसूस ना हो। इसी तरीके से ऐसे हालात में धूप का है, गर्मी का मौसम है, एक ये चीज ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने धूप और साये में बैठने से मना किया है। आपके जिस्म पर आधा हिस्सा साया है, आधा हिस्सा धूप है, ऐसी जगह पर नहीं बैठ सकते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस है, नहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैन ज़िह्हि व ज़िल्ली, धूप और साये के दरमियान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैठने से मना किया। बैठे या तो फुल साये में हो या फुल धूप में हो, आधा साया आपके जिस्म पर हो, आधा धूप हो, ऐसे हालत में ऐसी जगह पर बैठने से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा हाज़ा मक़अदुश शैतान, ये शैतान के बैठने की जगह, शैतान ऐसी जगह पर बैठता है, लिहाजा इससे बचना चाहिए। और एक और चीज आप ये जान लें कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे हालात में अगर मौसम गर्मा से हमको जहन्नम की याद आती है तो जहन्नम से कसरत से पनाह मांगना चाहिए, खास तौर पर सुबह शाम 3-3 मरतबा जहन्नम से पनाह मांगना चाहिए। अल्लाह के नबी कहते हैं मन सअलल्लाह अल जन्नत सलास मर्रात, जो शख्स जन्नत को 3 मरतबा मांगता है अल्लाह से तो जन्नत खुद कहती है अल्लाह तू इसको जन्नत में दाखिल कर दे। और जो जहन्नम से 3 मरतबा पनाह मांगता है तो अल्लाह से जहन्नम कहती है अल्लाहुम्मा अजिरहु मिनन नार, अल्लाह तू इसको जहन्नम से बचा ले। ऐसे हालात में, ऐसे मौसम में और हमेशा हर वक्त हर लम्हा
जहन्नम से पनाह मांगने की जरूरत है। वल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना अस्रिफ अन्ना अज़ाब जहन्नम, ये मोमिनीन का शिआर है, उनकी अलामत है कि वो हमेशा अपने रब से कहते हैं अल्लाह तू जहन्नम के आदाब को हमसे दूर कर दे। बड़ा बुरा ठिकाना है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा जहन्नम से पनाह मांगा करते थे। इसके अलावा भी बहुत सारी बातें इंशाअल्लाह कभी वक्त आया तो आपके सामने जिक्र की जाएगी। अल्लाह से मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह जो भी बातें इस खुतबे में कही गई हैं, अल्लाह हम सबको उस पर अमल करने की तौफीक दे। अल्लाह हमको इससे इबरत और नसीहत पकड़ने की तौफीक दे। अल्लाह जब तक जिंदगी दे किताब और सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक दे। जब खात्मा हो तो खात्मा बिल खैर अता फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।